Okay, so yesterday we talked about a little bit of data types and we also talked about operators. ठीक है, तो today is day 3 and we have to get an introduction to conditional statements. अब conditional statements क्या है? These are the statements, these are the keywords that help us to take some decision based upon some condition. ठीक है, so a lot of times we have to take some decision in our day-to-day life. ठीक है, one good example that I could give you is Google itself. What does it do? It simply monitors you. It simply monitors your activities. It tracks which videos you are watching, which posts you are liking, कौन से वीडियो पे कितने ज़्यादा देर तक रहे हो, कौन से वीडियो को तुमने डिसलाइक किया है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट it suggests you some recommendation videos. Yeah, it suggests you some advertisements. For example, you just go on Amazon and try to search for something and you will notice that you will have ads all around regarding the same thing that you searched about half an hour ago on Amazon. या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि you are planning a vacation, so you are searching about hotels in some region एंड आधे घंटे के बाद व्हाट यू सी इज हर जगह जितने एड्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे एड्स, सारे रिकमेंडेशन, स्पॉन्सर्ड पोस्ट उसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं. सो हाउ आर दीज थिंग्स हैपनिंग? देर आर कंडीशंस built inside of the system. If those conditions are getting true, some activity is getting triggered और वो एक्टिविटी फिर आगे डिसाइड करता है कि क्या करना है. सो दिस इज हाउ डिसीजंस आर टेकन. देयर विल बी अ कंडीशन. If that condition is true, then some further activity will get triggered that will be executed. अगर वो condition fail हो रहा है, then some other activity, some other statement will get triggered. So how do we take decisions in programming? There are 2-3 ways in which we can do that. Let us first understand those. ठीक है, the very basic. एक second ना, just hold on. Okay, just tell me if I'm audible. There was some issue with the system. No issues. So conditions, we were talking about taking decision. So दो तीन तरीके हैं in which we can take decisions. The first very simple way is using an if statement. How do we do it? You write if, then in the bracket you write some condition, and then you open and close the curly brackets and you write down some statements. तो होता ये है कि your compiler will check for this condition. It will see if this condition is true. अगर ये कंडीशन ट्रू है देन दीज स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड. ठीक है, वेरी सिंपल. अब ये होता है कि ठीक है, ट्रू हो गया तो वी विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स, बट व्हाट अबाउट द कंडीशन फेल्स? So if there is a case where you have to execute some other set of statements which will be executed when the initial condition is failing, then we use if else. So how do we do it? We write if, this is the condition. If this condition fails, execute the green block. Then we say else, and then we write some other statements that have to be executed when this initial condition will fail. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? If the condition C is true, ठीक है, if this condition becomes true, then the green block inside of if will get executed. और अगर ये C condition fail हो जाता है, that means if this turns out to be false, then else block के अंदर का कोड execute होता है. ठीक है, so one takeaway from this is कि ये जो else है, ठीक है, this else is not compulsory, it is optional. ठीक है, but this if is compulsory. मतलब क्या है कि आप if को अलग से भी लिख सकते हो without using an else. यहाँ पे मैंने else नहीं लिखा था, but for an else to be there, there should be a corresponding if present above it. आप else तब तक नहीं लिख सकते जब तक उसके ऊपर एक if present ना हो. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no? Yes,
ओके, द नेक्स्ट वे इज वेरी सिंपल. देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, व्हेन वी वर यूजिंग वन सिंगल इफ एल्स, so we were able to take only one decision. We were checking one condition and my entire story revolved around whether this condition is getting true or false. अगर ये condition true हो रहा है then you are executing if के अंदर की चीजें, else you are executing else के अंदर की चीजें. But what if I need to take nested decision? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक if else के अंदर भी अलग से if else लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, if I have to quote an example, the legal age for a boy to marry in India is 21 and the legal age for a girl to marry in India is 18. तो आप क्या करोगे, पहले चेक if, you will check the gender. So if gender is equal to boy, ठीक है, if the gender of the person is boy, then inside of that you can write if that boy का age is greater than equal to 21, then you can write marriage का code. Else you will write he cannot marry. Are you getting this? So यहाँ पे मैंने क्या किया, I checked for the gender first, and अगर ये gender boy है, then this part of the code will get targeted. This part of code will get triggered. ठीक है, तो these are called as nested if else. मतलब आपने एक कंडीशन चेक किया, उस कंडीशन के चेक होने के बाद you have to check for other conditions inside of that condition. So these conditions will not get evaluated unless and until this upper condition becomes true. ये चीज समझ में आ रही है? आंसर इन द चैट. ठीक है, नाउ वन मोर वे टू डू दैट इज यूजिंग इफ, एल्स लैडर. इसमें हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट राइट इफ देयर इज अ कंडीशन C1. अगर ये कंडीशन C1 ट्रू होता है तो देयर आर दीज स्टेटमेंट्स दैट यू एग्जीक्यूट. देन आई एम सेइंग कि ठीक है, अगर C1 फॉल्स हो जाता है लेकिन C2 दूसरा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो डू दैट. तो वो कैसे लिखेंगे, विल से एल्स इफ C2 condition is getting true, then you execute these block of code. ठीक है, अगर मान लो थर्ड कंडीशन है, so you will say else if this condition C3 is getting true, then you execute this block of code. अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हुआ, then what you will do? So simple else. So this is called as if else ladder. इसमें होता क्या है, you are checking for this condition 1 first. तो अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हुआ then this will get executed, नीचे का कुछ भी execute नहीं होगा. बट अगर कंडीशन 1 false हो गया then it will go and check for condition 2. अगेन अगर कंडीशन 1 false हो गया, कंडीशन 2 ट्रू हो गया, it will execute this and forget everything below. बट अगर कंडीशन ट्रू जो है, कंडीशन 2 if it gets false, then it will go down for the next condition. It will go and check condition 3. अगर कंडीशन 3 ट्रू हो गया, it will execute this and it will forget everything that is below it. But अगर condition C3 भी false हो गया तो finally else वाला block will get triggered and executed. Are you getting this? So one advantage is that if you have multiple decisions to make, you can simply use if, else if, जितने conditions है आपके उतने conditions के लिए, and finally you can use else. Are you getting this? Is this much clear? Answer in the chat, yes, no? Okay. One last method to make certain decisions is this, using switch. अभी होता क्या है, when we were talking about if or when we were talking about if else, ठीक है, या when we were talking about the ladder, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम एक कंडीशन को चेक कर रहे थे, and depending upon the condition, if it is true or false, we were taking some decision. But let us say you don't want to check a condition, you want to compare the value inside of a variable. ठीक है, let us say you don't want to check for a condition, you want to check for a value which is stored inside of a variable. Then what you do, you use switch. तो switch क्या करता है, it requires, so you write switch bracket में you write some expression that you want to evaluate. Then आप यहाँ पे curly braces के अंदर you write cases, case and then value 1. Then there is a colon mark, there are some statements and there is a break statement. इसका मतलब क्या है, all these things I'll explain, just give me a second. उसके बाद again case value 2, there will be some statements, this is a colon mark and finally there is break. ऐसे करते करते जितने values आपको specify करने हैं उतने करो and then finally default and then colon, all the statements that you want to execute and then break.
सो स्विच स्टेटमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है, दिस एक्सप्रेशन इट मस्ट बी स्टोरिंग सम वैल्यू इन इटसेल्फ, ये एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू होगा. सो व्हाट स्विच विल डू इज it will match the value stored inside of this expression with value 1, value 2, value 3, value 4, ऐसे करते करते it will compare. अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू और वैल्यू 1 मैच हो जाते हैं then this block of code will get executed and break क्या करता है, it will break the switch. मतलब you execute this much part and then break out of the switch, क्योंकि आपका जो कोड एग्जीक्यूट करना था वो आपने एग्जीक्यूट कर लिया. मान लो exp जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने उसके अंदर वैल्यू है 1 एंड मैंने पहला केस दिया है 0. सो व्हाट विल इट डू, इट विल कंपेयर इज 1 एंड 0 सेम. नो इट इज नॉट सेम, सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस. मान लो वैल्यू यहाँ पे सेकंड मैंने दिया है 10, सो इट विल कंपेयर इज 1 stored inside of the exp expression and value 2 that I have given over here, are they same? If they are same, it will execute this block and break क्या करेगा, it will break it out of the switch. अगर नहीं है, if the values are not matching, then it will go and check for the next value. Finally, अगर कोई भी matching के values नहीं है, so it will execute the default statement and finally it will break out of the loop, break out of the switch. क्या switch समझ में आया सबको? To give you an example of switch, let us say you have an integer n. You want to check if it is an even number or you want to check if it is an odd number. So what you can do, you can switch the value of n mod 2. देखो अगर इवन नंबर है तो n mod 2 की वैल्यू होगी 0, ठीक है. अगर ऑड नंबर है तो n mod 2 की वैल्यू होगी 1. तो ये जो n mod 2 है, it can have two values, 0 and 1. So what I can say, I can simply say case 0. Why 0? Because n mod 2 can store this value 0. तो जो values आपका ये वेरिएबल लेने वाला है, only those values we write inside of the case. So 0 अगर हुआ, case 0 का मतलब क्या है, n mod 2 की वैल्यू 0 होगी. So if that is the condition, then what will happen, will print that it is an even. अच्छा, n mod 2 equal to 0, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा. A number could be an even or odd. तो अगर आपने even चेक कर लिया and then you don't forget to write the break, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे वापस से case 1 लिखने की जरूरत नहीं है. I can simply write a final default over here. तो अगर इसका मतलब क्या है कि वो पहले 0 से चेक करेगा. अगर n mod 2 और is not equal to 0, then it will simply execute the default statement. And default में I will write printf odd. ठीक है. And finally my break. Are you getting how switch works? Switch simply ये करेगा कि switch के अंदर आपने जो वेरिएबल या जो एक्सप्रेशन पास किया है उनको आपके डिफाइंड वैल्यूज से चेक करेगा. हाँ, what Gaurav is asking is, if a case is satisfied and break is not added, will it execute other cases? Yes, Gaurav. मान लो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखता, अगर मैंने ये ब्रेक नहीं लिखा होता तो वो इवन भी प्रिंट करता, वो ऑड भी प्रिंट करता. ठीक है, बिकॉज नोबडी टोल्ड इट टू ब्रेक. ठीक है. सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू राइट ब्रेक, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो जहां पे आपने ब्रेक नहीं लिखा है, ठीक है, वहां से लेके सारे आगे के केसेस वो एग्जीक्यूट कर देगा. इज दैट क्लियर? ओके. Gaurav is again asking when to use if else if and when to use switch. Gaurav, the thing is कि you can use both of them. कभी भी it is up to you whether you want to use if else if or whether you want to switch. But generally switch is used. Why? Because switch के अंदर बहुत ज्यादा syntax आपको use नहीं करना पड़ता है. ठीक है. You are simply specifying the cases and you will get your job done. If else if अगर आप लिखने जाओगे तो वो brackets का बहुत ज्यादा syntax मैसअप हो जाता है. दैट इज वन थिंग. आप अपना सिंटैक्स अगर कम करना चाहते हो, अगर अपना मेस जो कोड है उसको जो सिंटैक्टिकली मतलब आपको देखने में अगर कोड अच्छा चाहिए तो यू राइट डाउन इनटू स्विच. बट द जनरल रूल ऑफ थंब इज इफ यू आर कंपेयरिंग अ कंडीशन देन यू यूज इफ एल्स इफ एल्स. ठीक है. अगर आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू चेक कर रहे हो, ठीक है, देन यू ट्राई टू यूज स्विच. तो व्हेन टू यूज स्विच, लेट अस से यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में क्या होता है, आप यूजर को पूछते हो टू एंटर अ वैल्यू 1 2 3 4. नाउ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वैल्यू यूजर हैज एडेड, यू हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन. तो उस केस में इट वुड बी बेटर टू यूज अ स्विच.
because you are storing that value as choice and आप फिर choice को switch करके check कर रहे हो. ठीक है? Are you getting this? Can we use logical operators and all those things in case का condition? The case has to be a value. ठीक है? The case has to be a value. I've never tried doing that, but if you want to check, तो after session you can just go on to your online C compiler and एक बार check करके देख लो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. That is how you learn. Okay? If you have any question कि मान लो will this work or will this not work, then you try to do it, try to code it by yourself, try to check. Agar it is working, then you can say that it is working, and if it is not working, then what you can do is go to the c++.com. उसमें रेफरेंस होगा, उसमें कहीं ना कहीं स्विच का डेफिनेशन दिया होगा, तो वहां पे स्विच के बारे में जाके यू कैन रीड मोर अबाउट इट. ठीक है? Let us now move on to the question that we want to solve today. The question is of day 3, introduction to conditional statements. ठीक है? टास्क क्या है? The task is that given an integer n, we have to perform the following conditional actions, and the conditional actions are here. अगर n odd है तो print weird. अगर n even है but inclusive range of 2 to 5, मतलब 2 से लेके 5 तक के रेंज में है, 2 and 5 inclusive, 2 and 5 को इंक्लूड करना है, then you print not weird. अगर n even है लेकिन वो इंक्लूसिव रेंज 6 से लेके 20 तक है, then print weird. And अगर n even है but it is greater than 20, then you print not weird. So this is a classic case जहाँ पे we will be using if else वाला थी. ठीक है? How to do that? Let us see. Input format क्या है? A single line containing a positive integer n. So let me quickly go back to my compiler. I want to take a positive integer n. So I will simply say printf enter n. ठीक है? Currently I am just trying to code it inside of the online C compiler. बाद में HackerRank पे जाके कोड कर लेंगे. ठीक है? And I have to take the value which is an integer and I want to store it inside of n. So this is how I will get the value from the user. अभी उन्होंने क्या बोला है? They have said कि if n is odd, then you print weird. So odd कैसे पता चलेगा? I'll say if this number divided by 2 is not equal to 0. अगर आप नंबर को mod कर रहे हो 2 से, that means you are dividing it by 2 and the remainder which you are getting is not 0. That means it is odd. So in this case you have to printf weird. ठीक है? So अगर odd है तो you have to print weird. The next all the 3 conditions, जो आगे के 3 conditions है, उसमें क्या हमें चेक करना है? First we have to check if n is even. So what you can say, else, देखो अगर n जो है, if n mod 2 is not equal to 0, that means it is odd, so it will execute this part. So I don't have to write else if here, I can simply work with else, क्योंकि अगर number odd यहाँ पे हो गया तो the only option remaining is it would be an even number. So I'll say else. ठीक है? तो यहाँ पे आप सारी even के cases में what are the further cases? अगर वो 2 से लेके 5 के बीच में है and 2 and 5 inclusive, मतलब 2, 3, 4, 5, then you print not weird. So I'll say if, ठीक है, n less than equal to 5 या उससे छोटा हो and at the same time n is greater than equal to 2. Why did I use and over here? Because 2 से बड़ा चाहिए and 5 से छोटा चाहिए. ठीक है? अगर मैं और लिख देता तो गलत हो जाता. क्यों? अगर मान लो मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और अगर ये n की वैल्यू 1000 हुई यहाँ पे, सो व्हाट विल हैपन? इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 2000? यस इट इज. देयरफॉर ये और का कंडीशन में दिस पार्ट बिकेम ट्रू एंड देयरफॉर क्या प्रिंट हो जाता? इट वुड हैव प्रिंटेड दिस वन, नॉट वियर्ड. ठीक है? बट हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें बस 2 से लेके 5 के बीच वाले नंबर्स को नॉट वियर्ड प्रिंट करना है. इसीलिए विल नॉट यूज और, वी विल यूज एन एंड ओवर हियर. तो यहाँ पे व्हाट डू आई हैव टू प्रिंट? आई हैव टू प्रिंट नॉट वियर्ड. सो आई विल से printf नॉट वियर्ड. ठीक है? उसके बाद व्हाट इज द फर्दर कंडीशन? इफ इट इज इवन
बट इंक्लूसिव रेंज है 6 से लेके 20 तक, तो प्रिंट वियर्ड। सो सी, ये जो एल्स वाला पूरा पार्ट है दैट इज फॉर इवन ओनली, उसी के अंदर आई हैव टू नाउ चेक फॉर द सेकंड इंक्लूसिव केस दैट इज 6 से लेके 20 तक। सो आई विल सिंपली से एल्स इफ n less than equal to 20 and n greater than equal to 6, 6 से लेके 20 तक है, then I have to print again weird. So I'll say printf weird. ठीक है। And finally the last condition which I have is अगर n even है but वो greater than 20 है, then you print not weird. So I'll simply say finally over here else if अगर n greater than 20 है then you print not weird. Did you understand this much? ये चीज समझ में आ रहा है सभी को? Answer in the chat, yes, no? Yes. So what we have done, we have simply used if and else के अंदर ये पूरा पार्ट इवन का पार्ट है। सो इवन के लिए 3 केसेस थे, सो वी हैव रिटन इट लाइक दिस। बट नाउ लेट अस फर्स्ट रन 2-3 केसेस एंड देन वी विल सी हाउ टू कस्टमाइज दिस, मतलब इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। सो लेट अस से यू वांटेड टू एंटर अ नंबर n, तो मैंने अगर 3 एंटर किया, इट इज एन ऑड नंबर, तो द आंसर शुड बी वियर्ड एंड देयरफॉर द आंसर इज वियर्ड। ठीक है, लेट मी रन दिस अगेन। अगर मैंने इवन नंबर ऐड किया बट वो ग्रेटर देन 20 है, सो द आंसर शुड बी नॉट वियर्ड। ठीक है, तो लेट अस से आई एंटर एनी नंबर 60 which is even and it is greater than 20, so what should be the answer? Not weird. So our code is working. अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सो यू सी वियर्ड कब कब प्रिंट हो रहा है? वियर्ड एक तो तब प्रिंट हो रहा है जब ये ऑड हो जाए, या तो तब प्रिंट हो रहा है जब तक ये कंडीशन ट्रू है, n लेस देन इक्वल टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 6 और 20 के बीच के सारे नंबर्स में यू आर प्रिंटिंग वियर्ड, या उसके अलावा अगर कोई भी ऑड नंबर आ जाए तो यू आर प्रिंटिंग वियर्ड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू कैन कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट्स इनसाइड ऑफ दिस इफ ओनली। कैसे करेंगे? आई कैन सिंपली से और एंड आई कैन सिंपली टेक दिस कंडीशन एंड पेस्ट इट हियर। इसको मैं हटा देता हूं। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने सारे वियर्ड के केसेस को एक साथ कंबाइन कर दिया। व्हाट एम आई सेइंग, अगर ये ऑड है या फिर अगर वो 20 से कम या इक्वल टू एंड एट द सेम टाइम 6 से ग्रेटर या इक्वल टू है, देन बोथ द केसेस में द आउटपुट दैट वी वांट इज वियर्ड ओनली। बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, या तो वो ऑड हो जाए तो वियर्ड भेजो, या तो अगर इवन है देन in the inclusive range of 6 to 20 then you print weird. Are you getting this? How I have combined these two statements? तो या तो वो odd हो जाए, या तो अगर वो even है then it should fall between this range. Are you getting this? How I have combined these two statements to form one single thing? Answer in the chat, yes, no? Yes, मैंने दोनों statements को combine कैसे किया ये समझ में आया? अच्छा, अभी इसमें क्या issue है? else को ध्यान से देखो। What I am saying is, ऊपर मैंने लिखा है कि n अगर odd हो जाए, so if n अगर odd हो गया, then it is printing weird. n अगर 6 से लेके 20 के बीच में आ जाए, then it is printing weird. बाकी सारे केसेस में it is going to print not weird only. Are you getting this? देखो, let me try to explain it to you by writing these. ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी क्रिएट अ न्यू स्क्रीन। ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। लेट अस से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज येलो, I'm going to use yellow for weird and I'm going to use white for not weird। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेटमेंट मुझे क्या बता रहा है कि अगर वो if it is odd
देन यू राइट इट डाउन एज वियर्ड। तो मैं क्या करता हूँ, सारे ऑड नंबर्स को येलो सर्कल कर देता हूँ। सो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। एंड इसके आगे के नंबर्स भी हो सकते हैं ऑड, नो इश्यूज। तो इसके आगे कुछ भी ऑड होगा तो वो भी वियर्ड हो जाएगा, नो इश्यूज। तो जो येलो से मैंने सर्कल किए हैं दोज आर वियर्ड, ठीक है। अब जो इवन है, ठीक है, लेकिन जो 6 से लेके 20 के बीच में है, इवन नंबर्स जो 6 से लेके 20 के बीच में इवन है, वो भी तो वियर्ड है। तो मैं कहूंगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सारे वियर्ड हो गए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो जो ऑड है, ठीक है, वो तो वियर्ड है ही, लेकिन इस रेंज के अंदर आने वाले सारे नंबर्स भी वियर्ड है, और 20 के आगे जो भी ऑड है वो वियर्ड है। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो। इधर तक मैंने जो किया वो समझ में आया? ये चीज समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? व्हाट एम आई सेइंग? ओके, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द एल्स कंडीशन। एल्स में मैंने क्या लिखा है? नॉट वियर्ड कौन से हैं? लेस देन इक्वल टू 5 and greater than equal to 2. So if you actually go over there and you see less than equal to 5, ठीक है, less than equal to 5 and greater than equal to 2 are these numbers, but उसके अंदर हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। Why? Because they are already weird, वो weird है। तो not weird में क्या आ गया? Not weird is 2 and 4. And similarly if you check the second condition, greater than 20, सारे जो है वो नॉट वियर्ड है। कब नॉट वियर्ड होंगे ग्रेटर देन 20 सारे नंबर्स? अगर वो इवन हुए तो ऑड हुए तो क्या? तो ऑड हुए तो वो पहले ही हम ऊपर हैंडल कर चुके हैं। सी एल्स विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड अनलेस एंड अनटिल दिस इफ गेट्स फॉल्स। अगर इफ के अंदर लिखी हुई सारी चीजें ट्रू हैं तो इट विल एग्जीक्यूट दिस एंड शट द प्रोग्राम। अगर इफ के अंदर लिखा हुआ कोई चीज फॉल्स हो गया तब वो आएगा एल्स पे। बट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इफ के अंदर मैंने वियर्ड लिख दिया है, देन इफ यू चेक टेक्निकली लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 20, तो दीज आर ऑल इवन नंबर्स जो बच गए हैं इस कंडीशन से। सो आई डोंट हैव टू फर्दर राइट दीज कंडीशंस। मैं इसको सीधा ऐसे ही एक एल्स में क्लब करके लिख सकता हूं, प्रिंट एफ नॉट वियर्ड। ये चीज समझ में आया मैंने क्या लिखा है? आर यू गेटिंग दिस? मैंने इसको सबको एक में कैसे क्लब कर दिया? आंसर इन द चैट, यस नो। यस, आर यू गेटिंग दिस? मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट दे हैव गिवन इज अगर एन ऑड है तो प्रिंट वियर्ड, ठीक है। सो एन अगर मैंने कोई ऑड नंबर एंटर किया, सो दिस कंडीशन गॉट ट्रू, इट विल प्रिंट वियर्ड, इट विल गेट आउट, वो एल्स की तरफ देखेगा भी नहीं। फिर अगर एन इज इवन एंड वो इस रेंज में है 2 से लेके 5 तक, तो प्रिंट नॉट वियर्ड। तो मान लो मैंने एक एन इवन नंबर डाला 2, दिस कंडीशन गॉट फॉल्स, दिस कंडीशन गॉट फॉल्स, एंटायर इफ विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। सो जो 2 से लेके 5 के बीच में इवन नंबर्स हैं वो तो सीधे एल्स के अंदर कवर हो गए। इसके लिए उस केस में मैंने नॉट वियर्ड प्रिंट कर दिया, जो कि टेक्निकली मुझे वही प्रिंट करना था, नॉट वियर्ड। अगर एन की वैल्यू इवन है एंड 6 से लेके 20 के बीच में, देन प्रिंट वियर्ड। ओके, कोई बात नहीं, 6 से लेके 20 के बीच में टेल एनी इवन नंबर, लेट इज ए 10। अगर n की वैल्यू 10 है, सो सी दिस कंडीशन गॉट फॉल्स बट दिस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि n 6 से लेके 20 के बीच में आ रहा है, n की वैल्यू 10 मैंने कंसिडर की थी, सो इट विल प्रिंट वियर्ड। सो फॉर 10 इट इज गोइंग टू प्रिंट वियर्ड विच इट शुड हैव प्रिंटेड। फिर अगर n ग्रेटर देन 20 है इवन होने के बाद, देन इट विल प्रिंट नॉट वियर्ड। सो आई कैन सिंपली से अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 20 हुई, मान लो 25, सो इज एन ऑड नंबर 25 है क्या? इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर एनी ऑड नंबर, ठीक है, सो इफ इट इज एन ऑड नंबर देन ऑब्वियसली 25 इज ग्रेटर देन 20। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ग्रेटर देन 20 है लेकिन उसके साथ साथ उसको इवन भी होना चाहिए,
तो अगर मैं 25 ऐड करता हूँ तो वो टेक्निकली क्या प्रिंट करना चाहिए, वियर्ड, क्योंकि वो फर्स्ट केस को ही सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर अगर 25 है, दिस केस विल गेट ट्रू, देयरफॉर इट विल प्रिंट वियर्ड। सो जो मैंने 4 कंडीशंस लिखे थे उसको मैंने सीधा 2 कंडीशन एक इफ एल्स में कन्वर्ट कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट, यस नो? Yes? Okay. Now what I can also do is, if you remember, yesterday we talked about a ternary operator. हम क्या लिखते हैं? We say expression 1. If this expression 1 is true, then expression 2 will get executed, वरना expression 3 will get executed. तो ये जो मैंने if else लिखा है, if I have to combine all of this into one single line, तो मैं क्या लिखूंगा? If this expression is true, तो मैं इसको कॉपी करके पहले यहां पे लिख देता हूं, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो इस सबको एक ब्रैकेट में डाल देता हूं। ठीक है, आई एम जस्ट रीराइटिंग दिस इफ एल्स हियर नीचे। तो मैंने क्या लिखा, इफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज ट्रू देन आई वांट टू प्रिंट वियर्ड, सो क्वेश्चन मार्क डालूंगा मैं यहां पे एंड आई विल से प्रिंट एफ वियर्ड। अच्छा, अगर ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया देन क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट नॉट वियर्ड। इसीलिए यहां पे आई विल पुट अ कोलन मार्क, ऐसे प्रिंट एफ नॉट वियर्ड एंड देन माय फाइनल सेमीकोलन। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, इस इफ एल्स को, पूरे इफ एल्स को कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में यूजिंग माय टर्नरी ऑपरेटर। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो? अगर नंबर ऑड है या फिर वो 6 से लेकर 20 के बीच में है तो वियर्ड आएगा, एल्स ऑल ऑफ द केसेस इट विल प्रिंट नॉट वियर्ड। ये चीज समझ में आया सबको? आंसर इन द चैट, यस नो? यस। नाउ लेट अस गो बैक टू HackerRank कोड एडिटर एंड देन वहीं पे लेट अस राइट डाउन द कोड। सो वी विल गो टू 30 days of code. We have to solve today's question, that is day 3, intro to conditional statements. Let me reset the code for you. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट मी चूज द लैंग्वेज एज सी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली HackerRank के अंदर देयर आर सम फंक्शन, उस फंक्शन को आपको कंप्लीट करना होता है, बट यहाँ पे द फंक्शन इज नॉट देयर। ठीक है, यहाँ पे द फंक्शन इज नॉट देयर, ये ऐसा कोड था। लेट मी रीसेट इट अगेन। ठीक है, दिस इज द स्क्रीन दैट यू विल गेट बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर नॉट गिवन any external function to write, that means you have to write inside of the main. तो ये char, star, read line सब लिखा है, उसको उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली मिनिमाइज दैट। क्योंकि मुझे कोई एक्सटर्नल फंक्शन अगर फिल नहीं करना है, एक्सटर्नल फंक्शन में कोड नहीं लिखना है, दैट मीन्स आई हैव टू राइट डाउन द कोड इनसाइड ऑफ द मेन। सो नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे वी वर एक्सेप्टिंग अ इंटीजर n. Now I don't know what this is, मुझे नहीं पता, it is very weird, but I can see that they have initialized this variable n, so that means they have initialized n as capital N. ठीक है, उन्होंने स्मॉल n नहीं यूज किया, उन्होंने कैपिटल N यूज किया। सो इफ आई राइट डाउन द कंडीशन, मैं यहाँ पे अपना कोड लिख देता हूँ। ठीक है, लेट मी कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम द ऑनलाइन सी कंपाइलर जो हमने पीछे लिखा है। So I'll simply take this exact line word to word and I'll copy paste. अब यहाँ पे देखो, हम स्मॉल n यूज कर रहे थे, HackerRank कैपिटल N यूज कर रहा है, सो जितने भी स्मॉल n है उसको लेट मी क्विकली गो बैक एंड चेंज टू कैपिटल N. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड एंड आई एम प्रीटी श्योर इट विल नॉट गेट एक्सेप्टेड. ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग, लेट अस लुक एट द एरर. दे आर सेइंग they want a semicolon somewhere. We are missing a semicolon somewhere. Let us try to compile this. पहले यही compile करके देखते हैं क्या इसमें भी error आ रहा है. Yes, they have an error. What is the error? printf not weird के बाद they expect this. Okay, so let me add a semicolon there.
ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. हमने एक ब्रैकेट ओपन किया था लेकिन उस ब्रैकेट को हमने क्लोज नहीं किया है, सो विल नीड टू क्लोज द ब्रैकेट. There was no error inside of our code. Yes, yes, yes. I just saw that. We had to close the bracket. So let me again go back to the editor. यहाँ पे let me close the bracket and let us run the code. But फिर भी I am pretty sure ये compile नहीं होगा. ठीक है, sample test case 1 false हो गया. Now see, our code is right. हमने code बिल्कुल सही लिखा है. Then what is happening? If you see, if you look at not weird, ठीक है. If I go back up, what is happening over here? We are getting a wrong answer. Why are we getting the wrong answer? उसने input किया था value 24. ठीक है, we are getting a value not weird. Expected value was also not weird. तो गलत क्या हुआ? If you closely look and let me increase the size for you, जो हमने weird लिखा है उसका W small है and जो expected output weird का था उसका W capital है. So if you want your test cases to pass, you have to give it exactly the way HackerRank wants it. So the code was not wrong. The only thing is that ये जो हमने weird लिखा है उसका W small था. So now if you run the code, your code is right. You are giving it everything exactly as it wanted. So if you submit the code now, all your test cases will run. They will be compiled successfully and they will be submitted. So let us just wait for a second till all the test cases are getting checked. So you see सारे टेस्ट केसेस रन हो गए एंड दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, तो किया क्या हमने? वी फर्स्ट रोट इट वेरी नाइवली, इफ एल्स, और उस एल्स के अंदर 3 कंडीशंस और डाले थे, इफ एल्स इफ एल्स. ठीक है, देन वी रियलाइज कि सारे वियर्ड को एक साथ क्लब कर सकते हैं, सारे नॉट वियर्ड को एक साथ क्लब कर सकते हैं, तो वी रोट इट लाइक दैट. बट देन वी रियलाइज इफ वी आर लेफ्ट आउट विद वन सिंगल इफ एल्स, वी कैन सिंपली यूज द टर्नरी ऑपरेटर. तो हमने फाइनली जो इतने सारे पता नहीं 8-10 लाइन का कोड था उसको हमने सिंपली 1 लाइन में लिख दिया यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर. एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज यू गिव HackerRank द आउटपुट इन द वे इट वांट्स इट. हमने वियर्ड का W स्मॉल लिखा था इसीलिए इट वाज शोइंग अस एन एरर. वी नो दैट वी हैव रिटन वियर्ड बट द कंपाइलर विल नॉट नो. व्हाई? बिकॉज स्मॉल w एंड लोअर केस w एंड बिगर लाइक अपर केस w दोनों में फर्क होता है. Each character has its own ASCII value. It is stored as a number. तो अगर आप एक कैरेक्टर का भी डिफरेंस करते हो तो उसका ASCII चेंज हो जाता है. द कंपाइलर विल नॉट अंडरस्टैंड इट. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट यस नो. एनी डाउट स्टिल हियर? ठीक है, कोई डाउट्स इस क्वेश्चन में? ओके, चलो देन. सो आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग.